Welcome to the discussion on essential elements of effective theme writing. एक कुशल या प्रभावशाली थीम लिखने के लिए कौन से तत्व या बिंदु आवश्यक हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है. Themes are comprised of ideas and concepts which are woven into sentences. In the earlier video, we have seen the meaning of theme writing, what it means and how it is written in general. The most general part has been discussed earlier. Now we come to the essential elements. So first of all, let us understand what a theme exactly is. Themes are comprised of ideas and concepts which are woven into sentences. Actually, a theme is a single or a group of ideas which are woven into sentences, which are intertwined into sentences, and when the reader reads them, he comes to know of the idea. अभी हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि थीम राइटिंग का अर्थ क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है. उसमें हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, परिचयात्मक हिस्सा देखा था. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि थीम राइटिंग के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं. उसके लिए हमें ये एक बार पुनः समझना है कि थीम राइटिंग क्या है. थीम को आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स, एक सिंगल आइडिया या एक आइडियाज का समूह, विचारों का समूह, प्रसंग का समूह के रूप में जाना जाता है. और यदि एक सिंगल आइडिया है तो वो बहुत सुलझा हुआ और आसानी से लिखा जाता है. और अगर मल्टीपल आइडियाज हैं या मल्टीपल थीम्स हैं तो उनको इंटरवोवन या इंटरट्वाइंड कंडीशन में हमें लाना होता है. उन्हें आपस में ऐसे रोचक तरीके से गुथा हुआ रखना होता है कि हमारा लेख उसके आधार पर आगे बढ़े. They are not random sentences. A theme is a group of sentences organized around a central topic. This is very important for us to know that the sentences used while writing an effective theme are not random sentences. ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि थीम राइटिंग में जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो रैंडम या बिखरे हुए या अनायास उठा लिए गए सेंटेंसेस नहीं होते हैं. A theme is a group of sentences organized around a central topic. Actually, these sentences which are picked up for a theme, they are properly organized. They have a system, they have a rule, they have a body, they have a decorum. जो वाक्य थीम राइटिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं वो बिखरे हुए या बिना आधार के वाक्य नहीं होते हैं, वो संगठित और व्यवस्थित वाक्य हुआ करते हैं. The fundamental rule for theme writing is to focus on one or more important ideas or subject matter. जब हम थीम राइटिंग की बात करते हैं, when we talk about theme writing, then we talk about the fundamental rule, which is that we should have either one idea or multiple ideas. The first thing is we should know how many ideas we are talking about. At least as a writer we should know. थीम लिखते समय एक लेखक को यह आवश्यक रूप से मालूम होना चाहिए कि वो कितनी थीम्स अपने लेख में समाविष्ट कर रहा है. एक थीम पर लिख रहा है या मल्टीपल थीम्स पर कई थीम्स एक साथ लेकर के चल रहा है, ये उसके सामने सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. A well-written theme makes its readers on a clear track without diversions or deviations. Now, a well-written theme takes its readers on a clear track. If the theme is well written,
if the theme is properly written, then it will not create any diversion or deviation, and the reader will move on a clear track, on a plain track, on a straight track. एक अच्छी थीम क्योंकि स्पष्ट लिखी जाती है, इसलिए पाठक के लिए भी बहुत सुविधाजनक होती है और पाठक उसके सुस्पष्ट रास्ते को पकड़ लेता है. उस सुस्पष्ट लकीर पर पढ़ते पढ़ते वो चलता है और उसके अंदर किसी भी तरह का भटकाव या किसी भी तरह से विषय से हटने की प्रवृत्ति नहीं आती है. वो बिल्कुल विषय से या मुख्य बिंदु से बंद करके चलता है. The essential elements discussed here are those that make the theme effective when used correctly. Now, it is important for us to know that these elements, when they are used correctly, they make the theme effective. यहाँ जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो जब सही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो थीम राइटिंग को बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली बना देते हैं. Element 1, unity. Unity in a theme begins with heading or topic sentence. Every theme has one or more controlling ideas. This is generally expressed in its topic sentence, which is typically the first sentence of the theme. Now, in general, we find that there should be unity. And unity in theme begins with the first sentence. The first sentence of any theme is the topic sentence. Now, when the topic sentence is constructed, the writer has to keep it in mind that he should be clear about what he is about to write or how he is going to carry it forward. जब किसी थीम राइटिंग की हम चर्चा करते हैं या विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक लेखक के रूप में ये आवश्यक है जानना कि थीम राइटिंग में यूनिटी का, एकजुटता का बहुत महत्व होता है और उसके लिए सबसे पहले हम विषय का जो मुख्य वाक्य है, पहला वाक्य है, उस पर ध्यान देते हैं और हमारे पहले वाक्य में वो बात आनी चाहिए, वो अभिप्राय आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए कि हम किस थीम पर लिख रहे हैं या किस थीम की ओर अग्रसर हो रहे हैं. Sometimes the theme takes some little bit of time in developing. It takes a few sentences or say it may take a paragraph or two when the writing is very long, like a novel or something like that. So at that situation, when that situation arises, then the writer has to carry in mind that the theme should move, the beginning part should move in the direction of where the idea is heading to. कभी कभी लेख बहुत लंबा होता है, जैसे कि उपन्यास है, उसमें पहला वाक्य दूसरा वाक्य करके हम नहीं विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वो उपन्यास बहुत लंबा होता है. ऐसी स्थिति में राइटर के लिए ये आवश्यक है कि वो ये देखे कि क्योंकि वो पहला वाक्य दूसरा वाक्य कई वाक्यों के बाद अपनी बात कहेगा या कुछ पद्य लिखने के बाद वो अपनी बात कहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अग्रसर जिस दिशा में हो वो उसको यूनिटी प्रोवाइड कर दे. अ थीम इज यूनिफाइड अराउंड this main idea with the supporting sentences providing detail and discussion. When the main theme is decided, then the supporting sentences, they provide meaning to the main sentence. This is important that the supporting sentence, they provide that unity. ये important है कि जब हम हर वाक्य में एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, एक जैसे भाव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग वाक्य हैं
वो हमारे मेन आइडिया के सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, ये आवश्यक रूप से हमें पता चलना चाहिए. In order to write a good topic sentence, think about your theme and all the points you want to make. Decide which point drives the rest. Then write it as your topic sentence. Now, it is very easy for us as writers to decide, because we can decide our main idea and then we can decide what are the other sentences and how they will correlate, which is the main one and which are the supporting ones. Then we can make the main one that carries the maximum part of our idea as the topic. हमें जब कोई वाक्य लिखने होते हैं, हमारे पास एक विचार भी होता है और उस विचार को सपोर्ट करने के लिए कई वाक्य होते हैं. तो हमें अपने उन कई वाक्यों में से ये देख लेना चाहिए कि मुख्य विचार या सबसे अधिक विचार के भाव को पकड़ने वाला वाक्य कौन सा है. उसको हम टॉपिक बना सकते हैं और उसके साथ वाले जितने भी वाक्य हैं उन्हें उसके सहारे के लिए खड़ा कर सकते हैं या उसका एक्सटेंशन करने के लिए खड़ा कर सकते हैं. दिस इज वेरी इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ सिंगल थीम. But when there are multiple themes in a literary piece, there needs to be more expansion and better handling of the subject matter. All themes should be interwoven into a fine fabric. Now, when we have to write a single theme, if our writing is based on a single theme, then it is very easy for us to follow this rule. But suppose the writing goes towards say multiple themes, then all those multiple themes should be interwoven. The element of unity should reflect in how they correlate to each other. यूनिटी की बात हम जहां करते हैं, वहां जब हम एक आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए यूनिटी को फॉलो करना बहुत आसान होता है. लेकिन जब हमारे पास कई थीम्स होती हैं या कई आइडियाज एक साथ चल रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कराएं और सारे के सारे आइडियाज एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए या उस आइडिया को आगे बढ़ाने में सहायक हो. तो हमारी जो यूनिटी का भाव है, हमारी जो एकजुटता का भाव है या संगठन का भाव है, वो वहां पर बहुत अच्छे से बन जाता है और हमारे थीम में यूनिटी आ जाती है. Element 2 is order. Order means the way you shape your supporting sentences. It depends on your content and individual choice. Now the second thing is the order, or sequence. Order means sequence. Order का अर्थ होता है क्रम. Order means the way you shape your supporting sentences. It depends on your content and individual choice. Now, how you have a few sentences in mind. How do you put them in a particular sequence? This is very important. And that importance will be determined by the content of the idea, the subject matter of the idea, as well as your individual choice. Because if you have a preference for something, then you will write in a particular way, or you will prioritize something over the other. जब हम क्रम की बात करते हैं तो हम जिस आइडिया को लेकर के अपनी थीम को लिख रहे हैं, उस में हमें अपने सारे वाक्यों को सामने रख करके उनका एक क्रम निर्धारित करना होता है. जब हम क्रम निर्धारित करते हैं तो उसमें सबसे पहले दो बातें मुख्य रूप से हमें प्रभावित करती हैं. एक तो कंटेंट या विषय वस्तु. जो विषय वस्तु होती है हम उसको मुख्य या महत्वपूर्ण मानते हैं, और उसके साथ ही दूसरी बात है हमारी व्यक्तिगत पसंद या हमारा व्यक्तिगत रुझान. हमारा व्यक्तिगत रुझान जो होता है वो हमें एक चीज को आगे रखना या मुख्य बनाना और दूसरी चीज को उसके बाद रखना, विचार को आगे पीछे करना, ये हमारा अपना भी रुझान होता है एक लेखक के रूप में. तो हमें क्रम निर्धारित करते समय
इस बात का प्रभाव होता है, हम मान के चलते हैं और हमें इस पर ध्यान भी दे लेना चाहिए. Whether you choose chronological order of importance or another logical presentation of detail, a solid theme always has a definite organization. Now, whether you choose a chronological order, when we put things in order, जब हम अपने लेख के वाक्यों को या भावों को या विचारों को या प्रसंग को ऑर्डर में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, तब क्या होता है, हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं, हमारे पास कुछ विकल्प होते हैं. जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी चीज को जब हम क्रमबद्ध करते हैं समय अनुसार, तिथि अनुसार, तो हमारे पास एक चॉइस होता है कि हम सबसे पुरानी वाली बात को पहले लिखें, उसके बाद आने वाली, फिर उसके बाद आने वाली, फिर उसके बाद आने वाली. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स पुटिंग द ओल्डेस्ट थिंग फर्स्ट, देन what appeared after that, then what appeared after that. It is something like that, date wise, calendar wise, time wise, we can put it in this sequence. Then another choice is the order of importance. Then order of importance is also noteworthy because it is for us to decide as a writer which thing will carry how much of meaning. हमारे लिए महत्व के हिसाब से क्रम निर्धारित करना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि हम लेखक के रूप में ये जानते हैं कि हमें कौन सी बात को महत्वपूर्ण बनाना है और कौन सी बात को उससे कम महत्वपूर्ण बनाना है. और another logical presentation of detail, a solid theme always has a definite organization or another organization of detail. Sometimes there is certain detail, certain content which we understand as a writer or as the experience holder of that situation, and we know how to put it. कभी कभी हमारा अनुभव या हमारा ज्ञान हमारी मदद करता है कि हमें उस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, उसकी प्रस्तुति कैसे करनी है. ऐसी स्थिति में ये हम लोग एक संगठित रूप से उनको क्रमबद्ध करके आगे प्रस्तुत करते हैं. In a well-ordered theme, the reader follows along easily. The pattern you have chosen helps you to move forward in understanding the content. Now, a well-ordered theme, the reader follows along easily. When the theme is written in a proper order, it is very easy for the reader to understand because it is written with clarity. जब किसी चीज को हम ऑर्डर में या क्रम में या सीक्वेंस में लिखते हैं तो हम रीडर के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा दे देते हैं, क्योंकि जब हर चीज सुलझे हुए रूप में सामने आती है, क्रमबद्ध तरीके से सामने आती है, तो उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता या उसे कोई चॉइस नहीं करनी पड़ती है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वो ऑटोमेटिकली, वो स्वतः ही उस फ्लो के साथ उस चीज को समझना शुरू कर देता है. The pattern you have chosen helps you to move forward in understanding the content. Order helps the reader grasp your meaning and avoid misunderstanding. So order and sequence are important. Now, why is this order so important? It is important because it helps the reader avoid misunderstanding. ऑर्डर की, क्रम की, सीक्वेंस की क्या महत्व है, क्या योग्यता है? वो ये है कि रीडर जब पहली बार किसी क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ता है, उस समय पर वो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत अधिक होती है. इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर द रीडर नॉट टू अंडरस्टैंड अ थिंग इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव. आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या समझ रहा है, इसके बीच में एक गैप आने की संभावना बहुत अधिक होती है. But when you write it in a well-ordered manner,
or in a proper sequential manner, then there is no scope for misunderstanding. आप क्या लिख रहे हैं और आपका पाठक उसमें से क्या पढ़ रहा है, इसके बीच में जो एक खाई उत्पन्न हो जाती है समझ की, वो अर्थ का अनर्थ कर सकती है। लेकिन जब आप ऑर्डर में लिखते हैं या सीक्वेंस में लिखते हैं, आप क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो आप रीडर के लिए बिल्कुल आसान कर देते हैं और फिर उसको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या समझने में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है और वो आपकी बात को वैसे ही समझता है जैसे आपने उसे समझाना चाहा है। The third element is coherence. Coherence is the quality that makes your writing comprehensible. Sentences within a theme need to connect to each other and work together as a whole. A coherence means the quality which makes a work comprehensible. Coherence का मतलब है कि किसी चीज को समझने के योग्य बनाना, ऐसी चीज जिसको पढ़ने वाला समझ जाए, वो उसमें एक यूनिटी होती है, एक ऑर्डर होता है, वो समझाई जाए इस तरह से, इतनी सुविधाजनक तरीके से कि पढ़ने वाला उसे आसानी से पढ़ के समझ ले, बिना अधिक प्रयास के, बिना अधिक झंझट के। Sentences within a theme need to connect to each other and work together as a whole. It is very important that the sentences which are used in the sentence, in the theme, should be well connected and meaningfully connected. This is very important because this is what creates that gap in coherence. हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो वाक्य आपस में जुड़े हुए होने चाहिए या आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए, क्योंकि यदि एक वाक्य उत्तर चल रहा है, दूसरा वाक्य दक्षिण चल रहा है, फिर एक पूर्व चल रहा है, एक पश्चिम चल रहा है, जब ऐसी राइटिंग्स होती हैं तो राइटर बहुत एफर्ट नहीं करता है समझने के लिए, रीडर बहुत एफर्ट नहीं करता है समझने के लिए कि राइटर ने क्या कहना चाहा है। फिर वो उसको हमने 4 दिशाएं दे दी, वो 5वीं दिशा में समझेगा। तो कोहेरेंस का या समझने की जो एलिमेंट है उसको सुविधाजनक बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है। One of the best ways to achieve coherency is to use transition words. Transition words are like and, but, so, and, because. Now, one way of avoiding this mistake, one way of making the theme effective is the use of transition words. इसका एक बहुत आसान तरीका है कि हमें ट्रांजिशन वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? वो शब्द जो जुड़ाव पैदा करते हैं या दिशा निर्धारित करते हैं या रुझान पैदा करते हैं, जैसे एंड। बहुत एलिमेंट्री वर्ड्स यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एंड। जहां एंड लग जाता है और लग जाता है तो हम दो विचारों को ऑटोमेटिकली साथ लेकर के चलते हैं, दो भावों को ऑटोमेटिकली साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एंड का मतलब है दोनों को जोड़ देना। बट जहां हम बट यूज करते हैं वहां हमें पता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि किंतु परंतु का मतलब ही अर्थ का पलटना हो जाता है। तो एक छोटा सा तरीका है कि हम ट्रांजिशन वर्ड्स की मदद से भी अपने कोहेरेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। They show your reader the relationship between phrases, sentences, or even paragraphs. Now, these transition words, they are very important because they define or underline or show the relationship between phrases, sentences, or even paragraphs. What is the relation, correlation? What is the correlation between the phrases, sentences, or paragraphs? That is very, very important for the reader. ये वाक्यांशों में या वाक्यों में या पद्यांशों में जो रुझान हम लोग देखते हैं, दो अनुच्छेद हैं, तो उन दो अनुच्छेदों के बीच में आपस में किस तरह का सामंजस्य है,
ये हमारे ट्रांजिशन वर्ड से पता चलता है। जैसे अभी हमने ये चर्चा की थी कि एंड होता है तो वो एक साथ चलते हैं क्योंकि एक नेचर के होते हैं, बट होता है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ये पलट जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत होने के पूरी संभावना है। बिकॉज का मतलब है जस्टिफाई करना कि ये इस चीज को का कारण बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम उन सेंटेंसेस को या उन फ्रेजेस को या उन पैराग्राफ्स को उसी तरह से कनेक्ट करके चलते हैं। सो दिस इज हाउ वी कोरिलेट और कनेक्ट और अंडरस्टैंड थिंग्स बाय द यूज ऑफ दीज ट्रांजिशन वर्ड्स. When you use them, you make it easier for your readers to understand how your thoughts and ideas are connected, and moreover, how the thoughts of the writer are connected. This is very important for the reader because he goes with the flow which the writer has observed. ये बहुत आवश्यक है। पाठक का रुझान वो होता है जो लेखक का होता है। तो जब हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हैं, हम अपने पैसेज को या हम अपनी थीम को कोहेरेंट बना देते हैं, तो हम अपने पाठक के लिए बहुत सुविधा कर देते हैं कि वो हमारे रुझान के साथ साथ हम अनुसार चले और उससे फिर उसके और हमारे बीच में किसी हमारे लिखने में और उसके पढ़ने में दोनों के बीच में कोई भी गैप क्रिएट नहीं होता है. These words create bridges and one sentence to the next. You can use transition words that show order. Now these words they act as bridges. ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं ये एक सेतु की तरह काम करते हैं, एक पुल की तरह काम करते हैं. क्यों? कि ये हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर पहुंचने में बहुत सहायक होते हैं और उसके लिए हमें कई तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है. जैसे कि टू शो द ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. कई बार हम बताते हैं दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम जिसको पहला बोल रहे हैं हमारा रीडर उसे ही पहला पढ़ेगा, हम जिसको दूसरा बोलेंगे हमारा रीडर उसे ही दूसरा पढ़ेगा. तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम जहां पर ऑर्डर दिखा रहे हैं वहां अपनी बात को कोहेरेंट बनाने के लिए हम ऐसे ऑर्डर शो करने वाले वर्ड्स का प्रयोग करें. स्पेशल रिलेशनशिप्स अबव बिलो. कई बार हम स्पेशल रिलेशनशिप्स बताते हैं, कौन सी चीज किस स्पेस पर लोकेटेड है, कौन सी चीज की क्या किस जगह पर रखी है या निर्धारित है. जैसे अबव बिलो, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायरेक्शंस का बताना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम बताते हैं हमारा रीडर ठीक उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है. वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचता है. हम अगर कहें कि आसमान ऊपर है तो वो उसे ऊपर ही देखेगा, हाँ, वो उसे नीचे नहीं देखेगा. हम कहें कि वहां है तो वो वहां देखेगा, वो यहां नहीं देखेगा. और लॉजिक furthermore in addition in fact, and sometimes we use some transition words or phrases which confirm the logic, like furthermore, in addition to, therefore, because, so that. So कई बार क्या होता है कि हम ऐसे emphatic लॉजिकल ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हैं जिनसे पता चलता है कि हम अपनी बात को एक्सटेंड कर रहे हैं या एम्फसाइज कर रहे हैं या अपनी बात को और प्रभावशाली ढंग से कह रहे हैं, हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं. तो ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करने से भी हमें काफी फायदा मिलता है अपने पाठक को अपने साथ लेके चलने में. Also in writing a theme, using a consistent verb tense and point of view are important ingredients for coherency. Now another very important factor for making a passage coherent is using the same verb tense. This is very important. हम किसी भी चीज का काल वही रखते हैं या अनुकूल रखते हैं. यदि हम पास्ट का बता रहे हैं, भूतकाल का बता रहे हैं तो हमें वही काल रखना है. हम भविष्य का बता रहे हैं, हमें वही काल रखना है. When we do not change the tense, then the reader is comfortable in understanding
and that is where coherence is established. हमारा पाठक उसी तरह से उस बात को पढ़ता है और वो बहुत आसानी से हमारे लेख को समझता है. This keeps the reader at a uniform pace, and the most important thing is that the reader is at a uniform pace. हमारा पाठक अपनी गति को हमारी गति के अनुसार निर्धारित कर लेता है. Element 4, here